Good morning, students. How are you all? Today I will teach you word meanings and framing sentence of the lesson Curly Locks and the Three Bears, page 98 of your book. Curly, arranged in curls or rolls. Hindi meaning घुंघराले. Sentence, she has curly hair. She has curly hair. उसके घुंघराले बाल हैं. Cottage. Cottage means कुटिया. A small house. कुटिया. Sentence, they were living in a cottage. वे एक कुटिया में रह रहे थे. Bowl. Bowl means a round deep dish. कटोरी या कटोरा. Sentence, he was eating rice in a bowl. वह एक बाउल में राइस खा रहा था. Porridge. Number 4. Porridge, cereal boiled in water. दलिया. Sentences, porridge is a healthy food. Porridge एक healthy food है. And last is number 5. Hungry. Hungry means need for food. भूखा. Need for food. भूखा. I was hungry in the school. मैं स्कूल में भूखा था. Page number 100. Let's read. You have to read it. आपको इसे read करना है. My sister's hair is soft and curly. मेरी sister के hair soft and curly हैं. When I am hungry, I eat a lot. जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं बहुत सारा खाता हूँ. Next question. Reading is fun. Page 100. Who lived in the cottage in the forest? Forest में cottage में कौन रहता था? The bear family lived in the cottage. Bear family cottage में रहती थी. What did Curly Locks see on the table? Curly Locks ने टेबल पर क्या देखा? Curly Locks saw 3 balls of porridge on the table. उसने टेबल पर 3 balls of porridge देखे. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? उसने बेबी बियर के बॉल से सारा पोरीज क्यों खा लिया? क्यों खा लिया उसने सारा पोरीज? She ate up all the porridge from the baby bear's bowl. उसने बेबी बियर के बॉल से सारा पोरीज खा लिया बिकॉज क्योंकि it was just right. यह एकदम सही था for her to eat. उसके लिए खाने के लिए एकदम सही था. Next, number 4. Whose bed did Curly Locks sleep in and why? Answer, Curly Locks slept in the baby bear's bed. वो बेबी बियर के बेड में सो गई बिकॉज क्योंकि the tiny little bed, जो छोटा बेड था, was just right for her to sleep. उसके लिए एकदम परफेक्ट था सोने के लिए. Next, page 100. Let's talk. Page 100. Let's talk. Have you ever seen a forest? Yes, I have seen a forest. हाँ, मैंने जंगल देखा है. जंगल में गया हूँ मैं. What did you see there? आपने वहाँ क्या देखा? I saw a lion in the jungle. मैंने जंगल में एक lion देखा. Next, there is a plate of sweets lying on the table. You want to eat some sweets. What will you do? There is a plate. एक प्लेट रखी हुई है स्वीट्स की टेबल पर. You want to eat some sweets. आपको स्वीट्स खानी है. What will you do? तुम क्या करोगे? Answer, I will ask the permission from the owner of the sweets to take the sweets. मैं स्वीट्स लेने के लिए जो ओनर है, मालिक है जिसकी वो स्वीट्स हैं, उनसे परमिशन मांगूंगा. Next is, name a few things that you get from a bowl. What do you call a bowl in your language? आपने बाउल में करके, कटोरे में करके क्या क्या चीज़ें खाई हैं और आप बाउल को, कटोरे मतलब बाउल को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आंसर, आई ईट, मैंने खाया है, राइस खाए हैं, पोरिज खाई है, सूप पिया है फ्रॉम ए बाउल. अब बाउल इज कॉल्ड ए कटोरा इन हिंदी. हम लोग बाउल को क्या बोलते हैं? कटोरा या कटोरी. नेक्स्ट, पेज नंबर 100. लेट्स टॉक. इट इज क्वेश्चन. Pretend that you are Curly Locks. Tell your friends what happened to you when you went into the bear's cottage. You can say the story first in your own language and then in English. आपको सोचना है अपने आप में कि हाँ आप कर्ली लॉक्स हैं और आप उस कॉटेज में गए जहाँ पे बियर रहते थे और आपने वहाँ पे क्या किया, क्या हुआ, वो सब आपको स्टोरी बताना है. अपनी लैंग्वेज में बताना है और इंग्लिश में बताना है.
और कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट इट, ऐसे स्टार्ट करना है। इसमें स्टार्टिंग दिए, बिगिन लाइक दिस, ऐसे शुरू करें। आई एम कर्ली लॉक्स, आई हैव कर्ली हेयर, वन डे आई, ऐसे। यस, आंसर, आई एम कर्ली लॉक्स, आई हैव कर्ली हेयर, वन डे आई डिसाइडेड टू रोम अराउंड दी फॉरेस्ट नियर माई कॉटेज। आई एम कर्ली लॉक्स, मैं कर्ली लॉक्स हूँ। आई हैव कर्ली हेयर, मेरे कर्ली हेयर हैं। वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन मैंने डिसाइड किया, टू रोम घूमने के लिए, अराउंड दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, नियर माई कॉटेज, मेरी कॉटेज के पास। आफ्टर ए फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद, आई सो अ ब्यूटीफुल एंड स्मॉल कॉटेज, मैंने एक ब्यूटीफुल और स्मॉल कॉटेज देखी। आई गॉट वेरी हैप्पी टू सी दैट, मैं बहुत खुश हुआ देखकर। आई वेंट इन साइड द कॉटेज एंड सो, मैं उस कॉटेज में इनसाइड यानी अंदर चला गया, एंड सो देखा, नो बडी देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, एंड ऑल्सो स्केर्ड, और डरा हुआ भी था, भयभीत भी था, टू सी दैट देयर वाज नो वन इन द हाउस, घर में कोई नहीं था, इस बात से मैं घबराया हुआ भी था। आई वेंट इन टू द किचन, मैं किचन में गया, एंड सो 3 बाउल्स ऑफ पोरिज, आई वॉज वेरी हंग्री, मैंने वहाँ 3 बाउल्स ऑफ पोरिज देखे, मैं बहुत हंग्री था। आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था। सो आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल द बाउल्स, मैंने सभी बाउल्स से खाया, बट आई लाइक द पोरिज ओनली फ्रॉम द टाइनी बाउल एज इट वॉज जस्ट फाइन फॉर मी टू ईट। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, जो सबसे छोटे वाला टाइनी बाउल था, उसमें अच्छा लगा, क्योंकि ये जस्ट राइट था मेरे लिए खाने के लिए। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। सो आई थॉट टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल, इसलिए मैंने कुछ समय सोने की सोची, रेस्ट करने की सोची। आई फाउंड 3 बेड्स, मैंने 3 बेड्स देखे इन द बेडरूम में। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू फिट इन ऑल द 3 बेड्स, मैंने सोचा कि मैं हर एक बेड में मैंने पढ़ने की कोशिश की, देखूं कि किस में ज़्यादा अच्छा फील होता है। बट इट वाज ओनली द टाइनी बेड वेयर आई फेल्ट कंफर्टेबल, जो टाइनी बेड था उसमें मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। आई टुक ए नैप, मैंने थोड़ी सी नींद ले ली, एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर के बाद, आई सॉ 3 बियर्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने मेरे सामने 3 बियर देखे। दे ऑल वर स्टेयरिंग एट मी, वे सब मुझे घूर रहे थे। आई गॉट फ्राइटेंड, मैं डर गया। आई थॉट ऑफ नथिंग, मुझे कुछ नहीं सूझा। देर आफ्टर एंड जस्ट रैन ऑफ फ्रॉम दी प्लेस, मैं वहाँ से भाग लिया। इट वॉज ए वेरी फ्राइटनिंग, इट वॉज ए वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, यह बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। फॉर मी, मेरे लिए। आई वुड नेवर वांट टू विजिट द प्लेस अगेन, मैं वहाँ पर फिर से दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। नाउ डू दिस वर्क in your Marigold English notebook, and if you have any problem, then you can please call me or can ask in the WhatsApp group of the school. Thank you very much.